Hello students, welcome back to my channel Drops of Learning. Today we are going to start with the chapter Sorting Material into Groups. Objects around us. We have seen that food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. So क्या कह रहा है ये यहाँ पे कि फूड और क्लोथ्स में बहुत सारी वैरायटीज हैं, है ना. इफ यू लुक इन योर होम you will see that there are lot number of foods which we can eat. Now even in same is with the clothes. You have so many types of clothes. You wear some clothes during the days, some clothes during the summer, some clothes during the winter, and some clothes during the night, and so there are lot number of clothes we have. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors, and uses. तो जितने भी हम ये सब चीजें देख रहे हैं तो इनकी क्या है, अलग अलग शेप्स हैं, कलर्स हैं और इनके यूज भी अलग अलग हैं. Now look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. तो कहते हैं कि अगर आपने कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करना है ना, अलग करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो कैसे हम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन योर क्लास आई से कि मैं आपकी क्लास को 2 ग्रुप्स में बनाना चाहती हूँ, तो कैसे कर सकती हूँ. सबसे सिंपल पॉसिबल मेथड जो मेरे लिए होगा, गर्ल्स एंड बॉयज. आई विल से मेक अ ग्रुप, है ना, 2 ग्रुप्स. वन विल बी ऑफ द गर्ल्स एंड अदर विल बी ऑफ द बॉयज. सो हियर वी आर टेकिंग द थिंग्स which are round in shape. So it may include a rubber ball, a football, and a glass marble. Similarly, you can identify other objects also, and you can identify them or group them according to their shape. If we include objects that are nearly round, our list could also include apples, oranges, and earthen pitcher, घड़ा. तो कहते हैं कि अगर जो और चीजें नियरली राउंड है, मतलब राउंड के आसपास हैं, तो उनको भी हम इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. नाउ वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल. सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल. एडिबल मीन्स थिंग्स व्हिच आर टू बी ईटन. अगर हम उन चीजों को देखते हैं तो वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 and 1.3 in the chapter 1. So as we had studied in the chapter 1, जितनी भी चीजें खाने वाली वहां पे थी, है ना, जैसे चाहे कोई वो इडली थी, राइस थी, खीर था, है ना, खीर थी, मतलब जो भी चीजें, मूंग दाल थी, तो ऑल सब जितनी भी चीजें हैं वो सब खाने वाली उसमें लिस्ट में इंक्लूड हो जाएंगी. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. जैसे कि हमने कुछ चीजें कहता कि राउंड शेप के लिए अगर की थी हमने, वो भी इस ग्रुप में आ जाएंगी. जैसे कि आपके एप्पल और ऑरेंजेस, फिर वो खाने वाली लिस्ट में भी आ गए और राउंड वाली लिस्ट में भी आ गए. ठीक है. लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. अब प्लास्टिक की चीजें बनी है, उसमें आपके बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, pipes, and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. So till now we have studied that if we want to group the objects, we can group them in a number of ways. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the material they are made of. तो हमने अभी तक क्या किया, उनको जिस चीज से वो बनी हुई थी या उनकी शेप के बेसिस पे हमने उनको ग्रुप किया. तो किसी भी चीज को अगर हम ग्रुप करते हैं तो वो 1 या 2 ग्रुप्स में ज्यादा में भी आ सकती है. All objects around us are made up of one or more material. These material may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more examples of material? कहते हैं क्या और एग्जांपल्स आपको मटेरियल्स के नजर आ जाएंगे. कोई आयरन की बनी है ना, मेटल भी हो गया वो भी, तो कोई किसी क्लोथ्स हो गए, है ना, जैसे हमने क्लोथ्स पढ़े हैं, तो इस तरह फाइबर से बनी है कोई चीजें. तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें और मटेरियल्स हमारे पास हैं. Now let us start with activity 1. Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home.
and we could get also collect some objects from the classroom or from outside the school. So in this activity it says that we should collect some things from the home and some things from the school class itself and some from the outside the school. Now what will we have in a collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. So we can also list other objects we think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. So these were some of the things. क्या है ये बहुत सारी चीजें, देखो कि क्या क्या चीजें हैं. चौक है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबर, डस्टर, ये सब चीजें तो आपको क्लासरूम में मिल जाएंगी. और कुछ क्या हम लेकर आए, एक हथौड़ा, कोई है ना मीक ले आया, सोप ले आया, स्पोक ऑफ अ व्हील मतलब जो आपका ये चक्का होता है ना साइकिल का, उसका एक जो उसमें लगे होते हैं उसको स्पोक कहते हैं ना, जो वायर टाइप की चीज लगी होती है ना सेंटर में, उसको कहते हैं स्पोक. ना कोई बैट ले आया अपना, है ना, तो मैच बॉक्स ले आया, सॉल्ट, पोटैटो, ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं. और कुछ चीजें जो हम क्या है क्लासरूम में तो ला ही नहीं सकते, जैसे वॉल है, ट्रीज है, डोर्स है, ट्रैक्टर और रोड है. Now separate all objects from this collection that are made from paper or wood. Now how we are going to segregate or separate them on some basis, ठीक है. Now we have taken the basis as some things which are made up of paper or wood. This way we have divided all objects into two groups. One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of this material. तो एक ग्रुप में हमने सारी चीजें जो पेपर से बनी है या वुड से बनी है उनको अलग कर लिया, और बाकी दूसरी तरफ बाकी चीजें बच गई. सिमिलरली क्या है कि वुड में आप कुक नहीं कर सकते, सो दिस इज दे आर डिफरेंट इन अपीयरेंस और इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है. कलेक्ट सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक. डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी? क्या क्या हमने कलेक्ट किया? हमने पेपर लिया, कार्डबोर्ड लिया, वुड ली, कॉपर तांबे की तार ली है ना, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम फॉयल तो आपने देखी है ना, चलो शीट नहीं देखी होगी तो चौक लिया. तो डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? क्या किसी में चमक है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप. यस, है ना, एल्यूमिनियम तो फॉयल तो आप देखते हो तो क्या है वो शाइनी होती है, चमकती है. ऐसे कॉपर वायर भी चमकती है. तो दो ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, जो शाइन करते हैं और जो शाइन नहीं करते. Now observe as the teacher cuts each material into two pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of the objects appear shiny? Include these objects also in the group of shiny material. तो अगर आप इनको काटोगे मटेरियल को तो कट सरफेस पर आपको क्या है इनकी चमक नजर आएगी. तो जो चमकते हैं उनको हम सेपरेट ग्रुप कर सकते हैं और दूसरों को अलग कर सकते हैं. Do you notice such a shine or luster in the other materials? Cut them any way as you can. कहता है कि जो आपको कुछ उसमें नजर आ रही है शाइन, क्या दूसरे मटेरियल्स में भी नजर आ रही है? Repeat this in the class with as many material as possible and make a list of those with or without luster. Luster means shine. Instead of cutting, you can rub the surface of the material with sandpaper to see if it has a luster. कहता है उसको काटने की बजाय भी आप सैंड पेपर से उसको रगड़ के देख सकते हो उस चीज के ऊपर. अब सैंड पेपर आपको पता है क्या होता है? सैंड पेपर होता है रेगमार. घर में कई बार देखा है ना, जब हमारे घर में पेंट चलता है ना, तो क्या है जो वो होता है पुराना जो हमने पेंट उतारना है तो उससे पेपर से एक जो हार्ड पेपर होता है और उसका अंदर वाला सरफेस बड़ा रफ होता है ना, तो उसको रेगमार कहते हैं. उससे हम कर सकते हैं, इसको भी रब कर सकते हैं. तो रब करने से उसमें शाइन नजर आती है या नहीं आती. सो मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. तो कहते हैं जिसके अंदर मोस्टली ये शाइन होती है, लस्टर होता है, वी कॉल देम एज द मेटल्स. जैसे आयरन लोहा है, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे आयरन है ना, अगर आप लोहे की चीज को बाहर रखोगे तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि उसकी चमक जो है वो खत्म हो गई है ना, उसके ऊपर थोड़ी कई बारी
जर लगनी भी शुरू हो जाती है, आपने देखा है ना। लेकिन जो गोल्ड है, सिल्वर है ना, हम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, मतलब आपने देखा है ना कि हम लोग रिंग्स पहनते हैं, कोई कड़ा पहनते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उनकी शाइन खत्म नहीं होती। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. तो इसीलिए हमने क्या किया कि जब हम कई चीजों को हमने फ्रेशली कट करके देखा कि उसमें शाइन है या नहीं है। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. कहता अगर आप आयरन स्मिथ मैंने लोहार की दुकान पे जाओ बाय चांस, उसकी वर्कशॉप पे आप अगर फ्रेशली कट सरफेस देखोगे मेटल रॉड्स के, तो आपको चमक नजर आएगी। नेक्स्ट इज दी हार्डनेस। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress, while others can be easily compressed. Now there are different materials, है ना? So some of the materials when you try to press them, they are very hard. आप उनको दबा नहीं सकते, compress मैंने दबाना, तो आप उनको दबेंगे ही नहीं। लेकिन कुछ materials ऐसे होते हैं जिनको आप दबा सकते हो। Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk or any other material or object. मेटल की मतलब कोई चाबी ले लो आप, है ना, मोस्टली मेटल की बनी होती हैं, तो उससे आप कहते हैं कि एक तो वुड के ऊपर स्क्रैच लगाओ, या एल्युमिनियम के ऊपर लगाओ, स्टोन के ऊपर लगाओ, एक नेल मैंने आपकी जो मेक होती है उसके ऊपर, कैंडल के ऊपर, चौक के ऊपर, है ना, ऐसी कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। सो यू कैन इजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स, जैसे कि चौक है ना, चौक के ऊपर आप कुछ भी, या कैंडल है, इसको स्क्रैच करना चाहोगे तो ये इजिली स्क्रैच हो जाएंगे, while some cannot be scratched so easily. So materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. So this way we can identify the materials as soft and hard. तो जिनको दबा सकते हैं या जिनको स्क्रैच कर सकते हैं easily, they are called the soft materials, and which are difficult to compress, जिनको हम दबा नहीं सकते या जिनके ऊपर स्क्रैच नहीं कर सकते, they are known as the hard materials. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. कॉटन को देखो, that is why we put them in the pillows also, है ना, पिल्लो में डालते हैं, तकिए में डालते हैं कि वो दब जाए। अगर कोई ऐसी चीज होती है, कभी हमने सैंड का या लोहे का पिल्लो बनाया नहीं, है ना, कि दबेगा ही नहीं वो। सो क्या है कि कॉटन है, स्पॉन्ज क्या होता है, आपकी गद्दियों में होती है ना, स्कूटर की जो गद्दी होती है बनी हुई, उस पे अगर आप बहुत पत्थर जैसी हार्ड हो, वो क्या उस पे बैठा जाएगा? नहीं, तो दब जाती है ना, तो सॉफ्ट लगती है, बैठने में अच्छा लगता है। ऐसे आपके जो घर में सोफा सेट होते हैं, सोफाज उसमें, है ना, और जो भी हम चेयर्स वगैरह लेते हैं उनके ऊपर जितनी भी हम गद्दियां रखते हैं वो सारी कॉटन भर के रखते हैं कि वो सॉफ्ट हो, और आयरन जो है वो हार्ड है। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Now, whatever things we have studied, कि जो materials हैं उनकी different properties हैं, कईयों में shine है, कईयों में नहीं है, कई hard है, कई soft है, कई rough है और कई smooth है। Can you think of properties that describe the appearance of a material? So these are some of the properties on the basis of which we can separate the materials. Soluble and insoluble. Now collect sample of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder and sawdust. क्या है, हमने किस किस चीज के सॉलिड समझ गए ना, आपको पता है, हमने 5th में भी पढ़ा है कि सॉलिड सब्सटेंसेस लेनी है, जैसे चीनी ले ली, सॉल्ट ले ली, चॉक पाउडर, चॉक को पीस कर उसका पाउडर ले लिया, सैंड ले ली, और सॉडस्ट होता है जो जब हम कोई लकड़ी छीलते हैं उसका जो बूरा होता है ना, उसको बोलते हैं सॉडस्ट। टेक 5 glasses और beakers, fill each of them about 2/3 with water. हम क्या है, हमने 5 बीकर ले लिए और सबको 2/3 वाटर से भर लिया। Add a small amount of sugar to the first glass. फर्स्ट ग्लास में हमने थोड़ी सी चीनी डाली, सेकेंड में हमने सॉल्ट डाला। Add small amount to the other substances into the glass. इस तरह सभी चीजों को, एक में सैंड डाला, एक में सॉडस्ट डाला, और इस तरह से सब चीजें हमने अलग अलग उसमें टम्बलर्स में या बीकर्स में डाल दी। Now stir the contents of each of them with a spoon. फिर स्टिर मैंने घोलना। घर में भी आप देखते हो ना कि जैसे आजकल आप कुछ ना कुछ शिकंजी वगैरह घर पे बनाते हो, चीनी डालते हो तो क्या करते हो, उसको
स्पून से घोलते हो, है ना, घुमाते हो उसको स्टर करना बोलते हैं ना. So wait for a few seconds. Observe what happens to the substances added to the water. Now note your observation as shown in the table 4.3. Now salt. What happens? Salt भी देखो आप डालते हो, आपको पता ही होगा कि क्या वो चीज वाटर में उसमें डिसअपियर हो रही है कि नहीं हो रही है ना. तो हम इस टेबल में नोट करेंगे सॉल्ट जो है डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर. सेम वे शुगर ऑल्सो, है ना. थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि चीनी तो बिल्कुल घुल गई है, हम कहते हैं ये तो घुल गया. क्या वो चीज घुल रही है या नहीं घुल रही है? सैंड है वो नहीं घुलेगा, है ना, वो नीचे वैसे वैसे बैठ जाएगा. चॉक पाउडर भी नहीं घुलेगा उसके अंदर, और ना ही सॉडस्ट जो है वो, ये सारी चीजें इनसॉल्युबल है. सॉल्ट एंड शुगर आर soluble. You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water. तो जो चीजें घुल जाएंगी और आपको बाद में नजर नहीं आती, those are soluble in water. and जो चीजें बहुत देर तक आपके घोलने पर भी नहीं घुलती तो आपको नजर भी आती रहेंगी बीच में, these are insoluble in water. Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. So कहते हैं कि water जो है ना, you know that 70% of our body is also made up of water. We drink a lot of water every day, है ना, कितना पानी हम पीते हैं. तो क्योंकि वाटर हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो घुल जाते हैं. So you will study in higher classes that water is also called the universal solvent. इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं घुल जाती हैं. Do liquids also dissolve in water? Yes. ये तो हमने सॉलिड लिए थे ना, अब कुछ लिक्विड्स भी हैं, है ना, जो सॉलिड में डिसॉल्व हो जाते हैं. जैसे घर में आप देखते हो मिल्क है, आप मिल्क और वाटर मिक्स करो, दे विल मिक्स इन वाटर, है ना, दे विल मिक्स विद ईच अदर. सेम वे इफ यू ऐड, यू हैव सपोज यू हैव ब्रॉट सम जूस, है ना, सो दैट जूस क्वांटिटी ऑफ द यूज इज वेरी लेस, बहुत कम है, थोड़ा जूस कम है, आपको लग रहा है. तो कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं. अगर हमने किसी को, मान लो क्या है कि हमें लग रहा है कि ये तो कम है ना, या फिर कोई चीज गाढ़ी होती है ना, कुछ जूस निकालते हैं तो गाढ़ा है उसमें, है ना, देन वी कैन ऐड सम water to it. Now one more activity we will do, collect samples of vinegar, lemon juice, mustard oil or coconut oil, kerosene or any other liquid. है ना, विनेगर क्या होता है, सिरका, है ना. कई बार हम खाते हैं ना वो सिरका व्हाइट कलर का होता है, जैसे उसमें अनियन वगैरह में डाल के, है ना, खाते हैं, वो आपने घर में देखा होगा. और लेमन जूस, नींबू का रस, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और कोकोनट ऑयल, है ना, नारियल का तेल. केरोसिन जो होता है इसको कहते हैं हम मिट्टी का तेल, है ना, जो जलाने के लिए काम आता है. या ऐसे कुछ और लिक्विड्स आप ले सकते हो. टेक अ ग्लास टम्बलर, और एक ग्लास कांच का टम्बलर लेंगे, है ना. फिल इट अप टू हाफ विद वाटर. Add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. So one by one we will try to put the liquids in the water and see what happens. Now let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mixes with the water. Repeat the same with other liquids as many different liquids are available to you. Now write down your observations in the table 4.1. Just see the table. Solubility of some common liquids in water. Now first we have taken the liquid that is the vinegar. Whether it mixes or not, yes, it mixes well. Then we will take lemon juice. It will also mix in the water. Now mustard oil, it will not mix, and coconut oil, it will not mix. Kerosene will also not mix with the water. Mostly the oils, they do not mix with the water. Other substances can mix. We notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. कहते हैं कि अगर आप देखोगे कि कुछ चीजें इसमें से विनेगर है, लेमन जूस है, वो मिक्स हो गए, लेकिन बाकी जो ऑयल्स थे वो मिक्स नहीं हुए, वो एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं, ठीक है. दे डू नॉट गेट मिक्स विद देम. तो आपने ये सुना होगा ना कि समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर कलेक्टेड आउटसाइड द होम, है ना, सो दे से कि पुट सम केरोसिन ऑयल देयर. बरसात के दिनों में पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है ना, और पानी में ऊपर मच्छर भी बहुत पैदा होते हैं, तो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि
कुछ उसमें आप थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दो अगर आपके पास है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है सूखने में, और उतनी देर में क्या है कि वहां मच्छर पैदा होते हैं. सो व्हेन वी ऐड द केरोसिन ऑयल इट विल कीप फ्लोटिंग ऑन द वाटर. ठीक है. और जो नीचे लावा पैदा हो रहा है उसके अंदर, वाटर के अंदर, then what will happen when that layer is formed, the oxygen will not go into the water and the larva dies. So in this way it is used because it is not mixed with the water. Bujo suggests that we also check if the liquids that we used in activity 5 mix well with some liquids other than water. Paheli is curious to know whether gases also dissolve in water. तो कहता है बूझो तो चाह रहा है कि किसी और चीज में भी हम जैसे कोई और लिक्विड में दोनों लिक्विड्स को मिक्स करके देखें. But Paheli wants to know whether gases also dissolve in water. So let us see. Some gases are soluble in water whereas others are not. कुछ गैसेस जो है वो वाटर में सॉलेबल है. तो देखो कितने सारे एनिमल्स जो है वो वाटर में रहते हैं. And you know that which gas is important for breathing? Oxygen gas. Oxygen gas is very important for breathing. Now, if this gas is not present in water, so the animals living there could not live. वो रह ही नहीं सकते थे वहां पे, उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी. Because oxygen gas can get dissolved in water, that is why the animals and plants they are able to live in water. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है. और भी आप देखते हो ना, you open a cold drink bottle, एकदम से क्या होता है कि वो उसमें से गैस बाहर निकलती है ना, because carbon dioxide gas is dissolved in that cold drink. That is why when you open, so the pressure, because of the pressure it comes out. Now objects may float or sink in water, है ना. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो पानी में तैर सकते हैं और कुछ डूब सकते हैं. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from the water. जो चीजें नहीं मिक्स हुई तो वो separate out हो गई थी. You may have also noticed this with some liquids in the activity 5. जैसे sand था, chalk powder था, sawdust था. तो ये सब चीजें क्या थी कि ये separate ही रही ना, they did not get mixed with water. तो हम ये देखते हैं कि क्या वो फ्लोट कर रही थी या नहीं कर रही थी. इसी तरह से जो हमने लिक्विड्स के लिए भी किया, तो जो ऑयल्स थे they kept on floating. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of the water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? Now, like sawdust and chalk powder, they are very light, they floated on the water. But the sand was heavy, it sank in the water. ना वो डूब गई, उसके अंदर नीचे बैठ जाती है. We may notice many examples of objects float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of the pond, a stone that you will throw in the pond. ठीक है. Some things like dried leaves, जो पत्ते गिर जाते हैं पॉन्ड के, है ना, कई बार जो उसके आसपास होते हैं पेड़ वगैरह, उससे तो वो ऊपर फ्लोट करते हैं. लेकिन अगर आप कोई स्टोन उसमें मारोगे तो वो डूब जाएगा. Few drops of honey that you will let to fall into a glass of water. What happens to all these? Just see in this figure. Some things they are floating on water, like key, coins, है ना, buttons, all these things they have sank down, है ना, वो डूब गई हैं. Bhujo would like you to give him 5 examples, each of objects that float and those that sink in water. Now, what about testing this same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? अब देखो कहते हैं बूझो कहता है कि कुछ एग्जांपल्स ये आप सोच सकते हो, है ना, कुछ ये दिखाई हुई है मैंने आपको. सम यू कैन थिंक अ लाइट बॉल विल आल्सो फ्लोट ऑन वाटर. लीव्स है, कोई कॉटन की चीज है या कोई पेपर की चीज है, कोई हल्की वुड की चीज है, तो ऑल दीज थिंग्स दे विल फ्लोट ऑन वाटर. नाउ नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी. यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, है ना, लुकन छिपी जिसको बोलते हैं. थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड so that you are not seen by others. तो आप कहाँ छिपना पसंद करोगे? ऐसी जगह पे ही जहाँ पे आपको कोई देख ना सके, है ना. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? है ना, ग्लास में कांच की विंडो के पीछे छुपोगे? नहीं, obviously not. As your friends can see through that and spot you. तो एकदम से नजर आ जाओगे, लेकिन आप लकड़ी के दरवाजे के पीछे छुप जाओगे, है ना, क्योंकि वहां पे आप नजर नहीं आओगे. Can you see through all the materials?
जब हम क्लास में पढ़ते हैं, है ना, तो क्या होता है कि एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, साथ वाली क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो क्या दीवार में से आपको साथ वाले बच्चे दिख रहे हैं? नो, है ना। अगर वो ग्लास की बनी हो, कांच की बनी हो, तो क्या आपको नजर आएंगे? यस। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। देखो, जिन मटेरियल के बीच में से आपको, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है और आप उनके बीच में से देख सकते हो, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। नाउ जस्ट सी बिलो, देयर आर नंबर ऑफ जार्स। नाउ व्हेन यू गो टू अ शॉप, है ना, तो क्या होता है कि उसने बहुत सारे ऐसे कांच के जार रखे होते हैं वहां पे, क्योंकि डिफरेंट टाइप की स्वीट्स हैं, या प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट है जैसे, तो उसमें प्लास्टिक के या उसके होते हैं, तो ही विल नॉट कीप ऑन ओपनिंग, बारी बारी खोल खोल के देखा किसमें कौन सी टॉफी है, किसमें क्या चीज है, किसमें क्या है। तो इसलिए वो ट्रांसपेरेंट चीजों में प्रेफर करता है कि हम चीजें रखें कि हमें नजर आ जाए, एकदम से हम निकाल के दे सकें। ग्लास, वाटर, अब देखो वाटर, पानी के अंदर आपकी कोई भी चीज गिर जाए तो आपको नजर आ जाएगी। तो एयर तो ट्रांसपेरेंट है ही है, बिकॉज जैसे कि एयर सब जगह प्रेजेंट है, लेकिन वी आर एबल टू सी थ्रू द एयर। एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatables in the transparent container of glass or plastic so that the buyers can easily see these items. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see, है ना, जैसे कि these materials are called opaque. जिनके बीच में से हमें नहीं नजर आता, उनको हम क्या कहते हैं? opaque कहते हैं. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, है ना, जो कोई लकड़ी का क्या है, कोई बक्सा है, उसमें क्या चीज है आपको नजर नहीं आएगा, है ना। कार्डबोर्ड, कार्टन, कोई कार्डबोर्ड का बॉक्स है, उसमें नजर नहीं आएगा। और मेटल कंटेनर, या कोई मेटल की, कोई स्टील की अलमीरा, घर में जैसे हम कहते हैं मेटल की अलमीरा है, अलमीरा के अंदर आप मोस्टली उनके क्या होते हैं, जो दरवाजे होते हैं वो सब वुड के जो होते हैं, या आयरन की अलमीराज होती हैं। सो कुड यू गेस व्हाट थिंग्स आर प्रेजेंट देयर, है ना, यू कैन नॉट सी देम। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स are examples of opaque material. Now, do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? देखिए, सारी चीजों को आप opaque या transparent में कर सकते हो? नहीं, है ना। sometimes क्या होता है, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है इसमें से, है ना। Now उसके लिए देखो, next activity will do, take a sheet of paper and look through it towards the lighted bulb. एक बल्ब जहां लाइट जल रही है उसकी तरफ देखो. Make a note of your observation. Now put 2 to 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. पहले आप लाइट की तरफ देखोगे, आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर आप कुछ बूंदे वहां पर ऑयल की डालो 2-4, तो उसके बाद आप देखोगे. Now when you will see through that, you will be able to see little bit of light. Look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oil paper? Is everything on the other side of it visible? नहीं, है ना. We say perhaps not. Only little bit of you can see, not the clear thing you cannot see. Now the materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. अब देखो, एक शीट, कई बार आप जो प्लास्टिक की शीट एक उसके ऊपर कवर करते हो कॉपीज के ऊपर, है ना, उसमें से बहुत अच्छी तरह कई बार नजर नहीं आता अंदर का कवर, so those are known as the translucent. Remember that oily patch on paper when we tested food items for presence of fats, that was translucent too. जो previous lesson में हमने किया था ना, food items के लिए टेस्ट किया था, उसमें हमने क्या किया था, हमने कोई भी फूड आइटम ली थी जिसके अंदर ऑयल होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट्स लिए थे, है ना, तो उसको हमने क्रश किया जब पेपर के ऊपर, तो उसके ऊपर ऑयल आ गया, तो दैट पेपर बिकेम ट्रांसलूसेंट. Can you think of some more examples of translucent material? इसी तरह बटर पेपर आता है ना, तो ऐसी कुछ चीजें आती हैं विचार ट्रेसिंग शीट एक कहते हैं ना, ट्रेसिंग शीट आती है जिसको देखकर आप थोड़ा थोड़ा नजर आता है, आप ट्रेस कर सकते हो चीजें, है ना, कॉपी कर सकते हो नीचे से. So these are translucent. We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. Now again, once we will revise, opaque are the things through which we cannot see at all, transparent are the materials through which we can clearly see, and translucent through which we can see a little bit only, which things are not visible properly.
Now Paheli suggests covering the glass of a torch with your palm of a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. तो उसने क्या किया, तो उसको हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक में करना है, ठीक है. सो व्हाट डू यू थिंक इट विल बी? कैन यू गेस whether it will be? Because some light is passing through it, so we can call it as the translucent. We learn that materials differ in their appearance and way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. तो या तो हम एक तरह की चीजें ग्रुप कर सकते हैं, ये चीजें आपस में मिलती हैं, उनको ग्रुप कर सकते हैं, या हम ग्रुप बना सकते हैं कि ये चीजें आपस में मिलती नहीं है, तो इनको अलग अलग उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि ये चीजें सारी फ्लोट करती हैं, इनका एक ग्रुप बन गया. ये सारी सिंक करती हैं, उनका ग्रुप बन गया, है ना. तो या किसी और बेसिस के ऊपर कि इनके डिफरेंसेस हैं, ये प्लास्टिक की बनी है चाहे चेयर ही है ना. ये प्लास्टिक की बनी है, ये वुड की बनी है तो चेयर ही, लेकिन हम उनको डिफरेंस के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टी के डिफरेंस के ऊपर हमने उसको अलग कर दिया. Why do we need to group materials? अब सबसे important thing क्या है कि why do we need to group materials? In our everyday life, we often group materials for our convenience. अपनी आसानी के लिए, है ना. अगर चीजें इधर उधर ऐसे ही सारी बिखरी पड़ी हों, तो क्या आप चीजों को आसानी से, अपनी लाइफ कन्वीनियंट होगी, आसानी से चीजें यूज कर सकते हैं? नहीं. इवन इफ यू गो टू अ शॉपकीपर, है ना, आप देखते हो कि वो सारी खाने पीने वाली चीजें एक साइड पे लगा देगा. आजकल तो बड़े बड़े स्टोर्स में भी आप जाते हो, है ना, जैसे रिलायंस स्टोर है, आप देखते हो कैसे चीजों को ग्रुप किया गया है. इधर ये खाने वाली चीजें हैं, इधर ये हमारी टॉयलेटरीज है, मतलब टॉयलेट में यूज होने वाली चीजें हैं, इधर ये दालें का सेक्शन है, इधर ये अलग अलग चीजें ऐसे रखी जाती हैं. सो एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर. तो घर में भी हम ऐसी चीजें स्टोर करते हैं कि एक जैसी चीजें हम एक जगह पर रख लें. Such an arrangement helps us to locate them easily. Now even at home also, when your mother keeps your clothes, है ना, like we are using our undergarments, we are using t-shirts, pants, so what do you do? Even in the cupboard you keep your things, like you keep your undergarments in a separate row, then you keep your pants, then you keep your shirts. Like this we keep them in a organized manner, because it will be very easy for us to locate them. Otherwise क्या है, अगर हम सारे कपड़े, है ना, शर्ट, पैंट, अंडरगारमेंट, सब चीजें इकट्ठे करके कबर्ड में रख देंगे तो क्या हमें मिलेगा नहीं, है ना. कोई भी चीज हमें टाइम पे अच्छे से मिलेगी नहीं, एंड दे विल बी डिसऑर्गेनाइज्ड आल्सो. सारा हम उसको खराब भी कर देते हैं अगर फिर जल्दी जल्दी में निकालते हैं. Similarly, a grocer usually keeps all the biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while the grains and pulses are stored at some other places. कहते हैं इसी तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो ग्रोसर भी है वो भी ऐसी चीजें अपनी शॉप्स में रखते हैं मेनली. So why we are grouping the materials? For our convenience. There is another reason why we find such grouping useful. अब ये ग्रुपिंग और भी क्यों यूजफुल है? डिवाइडिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड टू ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज. तो इसी तरह से क्या है कि उनको हमें उनकी प्रॉपर्टीज भी, ग्रुप्स की प्रॉपर्टी पढ़नी आसान है. एक एक चीज की प्रॉपर्टी नहीं ना हम पढ़ सकते. अगर कोई चीज अगर वुड की बनी हुई चीजें हमने एक साइड में रख दी, तो हम वुड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये चीजें वुड की क्यों बनी हुई है ना, प्लास्टिक की क्यों बनी हुई है. इसी तरह से किसी ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ना आसान है. वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन द हायर क्लासेस. तो इसी तरह से आप पढ़ोगे, है ना, हायर क्लासेस में और भी इसके बारे में. सो होप यू मस्ट हैव लाइक दिस क्लास translucent. Now again, once we will revise, opaque are the things through which we cannot see at all, transparent are the materials through which we can clearly see, and translucent through which we can see a little bit only, which things are not visible properly. Now Paheli suggests covering the glass of a torch with your palm of a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or
ट्रांसलूसेंट। तो उसने क्या किया, तो उसको हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक में करना है, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक इट विल बी? कैन यू गेस whether this is? So it will be because some light is passing through it, so we can call it as the translucent. We learn that materials differ in their appearance and way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. तो या तो हम एक तरह की चीजें ग्रुप कर सकते हैं, ये चीजें आपस में मिलती हैं, उनको ग्रुप कर सकते हैं, या हम ग्रुप बना सकते हैं कि चीजें आपस में मिलती नहीं है, तो इनको अलग अलग उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये चीजें सारी फ्लोट करती हैं, इनका एक ग्रुप बन गया, ये सारी सिंक करती हैं, उनका ग्रुप बन गया, है ना। तो या किसी और बेसिस के ऊपर कि इनके डिफरेंसेस हैं, ये प्लास्टिक की बनी है चाहे चेयर ही है ना, ये प्लास्टिक की बनी है, ये वुड की बनी है तो चेयर ही, लेकिन हम उनको डिफरेंस के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टी के डिफरेंस के ऊपर हमने उसको अलग कर दिया। Why do we need to group materials? अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि why do we need to group materials? In our everyday life we often group materials for our convenience. अपनी आसानी के लिए, है ना। अगर चीजें इधर उधर ऐसे ही सारी बिखरी पड़ी हो तो क्या आप चीजों को आसानी से, अपनी लाइफ कन्वीनियंट होगी, आसानी से चीजें यूज कर सकते हैं? नहीं। इवन यू गो टू अ शॉपकीपर, है ना, आप देखते हो कि वो सारी खाने पीने वाली चीजें एक साइड पे लगा देगा। आजकल तो बड़े बड़े स्टोर्स में भी आप जाते हो ना, जैसे रिलायंस स्टोर है, आप देखते हो कैसे चीजों को ग्रुप किया गया है, इधर ये खाने वाली चीजें हैं, इधर ये हमारी टॉयलेटरीज है, मतलब टॉयलेट में यूज होने वाली चीजें हैं, इधर ये दालें का सेक्शन है, इधर ये अलग अलग चीजें ऐसे रखी जाती है। सो एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। तो घर में भी हम ऐसी चीजें स्टोर करते हैं कि एक जैसी चीजें हम एक जगह पर रख लें। Such an arrangement helps us to locate them easily. Now even at home also, when your mother keeps your clothes, है ना, like we are using our undergarments, we are using t-shirts, pants. So what do you do? Even in the cupboard, you keep your things, like you keep your undergarments in a separate row. Then you keep your pants, then you keep your shirts. Like this, we keep them in a organized manner because it will be very easy for us to locate them. Otherwise क्या है, अगर हम सारे कपड़े, है ना, शर्ट, पैंट, अंडरगारमेंट, सब चीजें इकट्ठे करके कबर्ड में रख देंगे तो क्या हमें मिलेगा नहीं, है ना, कोई भी चीज हमें टाइम पे अच्छे से मिलेगी नहीं, एंड दे विल बी डिसऑर्गेनाइज्ड आल्सो। सारा हम उसको खराब भी कर देते हैं अगर फिर जल्दी जल्दी में निकालते हैं। Similarly, a grocer usually keeps all the biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while the grains and pulses are stored at some other places. कहते हैं इसी तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो ग्रोसर भी है वो भी ऐसी चीजें अपनी शॉप्स में रखते हैं mainly. So why we are grouping the materials? For our convenience. There is another reason why we find such grouping useful. अब ये ग्रुपिंग और भी क्यों यूजफुल है? Dividing material into groups make it convenient to study their properties and to observe any pattern in these properties. तो इसी तरह से क्या है कि उनको हमें उनकी प्रॉपर्टीज भी, ग्रुप्स की प्रॉपर्टी पढ़नी आसान है। एक एक चीज की प्रॉपर्टी नहीं ना हम पढ़ सकते। अगर कोई चीज अगर वुड की बनी हुई चीजें हमने एक साइड में रख दी तो हम वुड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये चीजें वुड की क्यों बनी हुई है ना, प्लास्टिक की क्यों बनी हुई है। इसी तरह से किसी ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ना आसान है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन द हायर क्लासेस। तो इसी तरह से आप पढ़ोगे, है ना, हायर क्लासेस में और भी इसके बारे में। So hope you must have liked this class. Thank you. See you in the next class. And also, please like, share and subscribe my channel Drops of Learning. And if you have any doubts, you can comment below. Thanks.